about properties of determinant. So first of all, I will tell you that how many kinds of properties are there of determinant. There are 6 properties of determinant. First of all, we are discussing about first property. What is first property? The value of the determinant remains unchanged. The value of the determinant remain unchanged if its rows and column are interchanged. That means अगर हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें किसी भी मैट्रिक्स के या डिटरमिनेंट के, तो उसमें क्या होगा, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2x2 ऑर्डर. ओके, 1 2 3 4, ये 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसका हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले हम इसको किस तरह से लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4, पैरेलल लाइंस के बीच में लिखना है. ये हो गया डिटरमिनेंट. अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कहा कि पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इनका रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे और फिर हम वैल्यू निकाल के देखेंगे कि सेम आती है कि नहीं. तो पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, 4 1 4 और 3 2 6. डिटरमिनेंट कितना आया, -2 आया. ठीक है. अब हम इसकी रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं. अब ये मैट्रिक्स हमारे पास थी, हमने इसको इंटरचेंज किया, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनने वाली है, 1 2 3 4, ये बनने वाली है. इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 3 2 4, 4 1 4, 3 2 6. रिजल्ट कितना आया, -2. आप चेक कर लो, आपका डिटरमिनेंट दोनों जगह क्या आया है, -2 आया. दैट मींस देयर विल बी नो इफेक्ट इफ वी आर गोइंग टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम विद ईच अदर. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर 3x3 ऑर्डर. We are taking matrix A is equals to 1 0 -2 0 3 5 2 3 1. Okay, this is a matrix of 3x3 order. So first of all, we are taking out the determinant of this. So determinant of A is equals to what? We are just finding along with row. Okay, directly. So first we are taking 1. We are taking sign positive. Remaining part will be this row and this column will be deleted. 3 5 3 1 will be remaining. Now minus sign will be there, 0 will come, row and column. So remaining part 0 5 2 1, 0 5 2 1 plus -2 is there. Now write down the determinant part. If -2 we are taking row and column will be erased. 0 3 2 3, 0 3 2 3. These are the elements. Now we are taking out the further values. So 1 1 3s are 3, 3 5s are 15. Minus 0 into anything, 0, plus -2 into 3 into 0 0, and minus 3 2s are 6. So 3 minus 15, that means -12. This part will be deleted. -2 into -6, that means +12. The value of this determinant is equals to 0. Clear? As you can see, now we are just reversing that, we interchanging the row and column. Then we will take out the determinant. It is coming 0 or not. Let's see. So first we are converting this. The matrix will be what? 1 0 -2 0 3 5 और 2 3 1. हमने क्या किया, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं. लेट्स सी. We are expanding along with row. Okay. So first we are taking 1. This row and this column will be deleted. Remaining element 3 3 5 1, 3 3 5 1. Now -0, 0 we are taking this row, this column will be erased. So 0 3 -2 1, 0 3 -2 1. Now +2, this column or this row deleted. 0 3 -2 and 5. Okay, now solve it. 1 3s are 3, 3 5s are 15. This will be 0, +2, 5 into 0 0, or 3 2s are minus sign, 3 2s are 6, so -6 will be here. Okay, -6. So 3 minus 15 -12, or +2 is here. Minus 6 is 12. Remaining is 0. That means we can see the determinant is coming 0. So if we are going to interchange row and column, the value of the determinant remain
unchanged. Okay, so now study about second property. If any two rows or column of a determinant are interchanged, the sign of determinant changes. That means अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हमने रो को कॉलम के साथ क्या कर दिया था, इंटरचेंज. अब यहां क्या बोल रहे हैं कि टू रोज और कॉलम को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. दैट मींस कोई भी, जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि दो रोज को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज. R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, R3 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दिया, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया. तो हम लोग क्या कर सकते थे, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते थे, कॉलम को कॉलम के साथ. एज सेम अगर आप डिटरमिनेंट में फॉलो करते हो तो क्या होगा, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है. दैट मींस अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा पहले मैट्रिक्स का तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा. अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. देखते हैं कि एक्चुअली है क्या. एग्जांपल लेते हैं. एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 3x3 ऑर्डर का लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा. 1 0 2 -1 5 8 2 0 1. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग आउट डिटरमिनेंट ऑफ दिस. वी आर एक्सपेंडिंग along with row. So first we are taking 1. Remaining part will be 5 8 0 1. That means we इसका रो और इसका कॉलम हटाया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, ये है. अब सेकंड को लिखना है तो मैं क्या नेगेटिव साइन के साथ लिखना होता है, तो -0. अब 0 को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, -1 8 और 2 और 1. क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम हटाओगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, -1 8 और 2 और 1. ठीक है. नाउ +2 लिखना है. अब ये वाला कॉलम ये वाली रो हट जाएगा तो -1 5 और 2 और 0. नोट कर लिया. अब देखते हैं आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो 1 सेम रहेगा, 1 5 is 5 minus 0 8 is 0. -0 into something, 0 will be there. Now +2 -1 into 0 0. 5 2 is 10. 5 minus 0 5 into 5 5 into 1 5. Okay. -0 will be remaining, will be deleted. Now 2 into -10, that means -20. The remaining part will be -15. That means the determinant of A is equals to कितना आ रहा है, -15 आ रहा है. अब जो हम इसमें इंटरचेंज करने वाले हैं, क्या इंटरचेंज करने वाले हैं, मान लो कि मैंने रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया. क्या मैं चेंज करने वाला हूं, रो 1 को इंटरचेंज करने वाला हूं रो 3 के साथ. तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, A is equals to ये 2 0 1 यहां आ जाएगा, 2 0 1 और ये वाली रो तो सेम रहने वाली है, -1 5 8 और ये आपका 1 0 2 कहां है, यहां पे चेंज हो जाएगा. दैट मींस हमारे पास रो 1 और रो 3 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. अगर वो भी सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है. लेट्स सी. तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, सबसे पहला हमारा एलिमेंट क्या है, 2. हम अलॉन्ग विद रो ही एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 लेते हैं. तो इसका रो इसका कॉलम हटाएंगे तो 5 8 0 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स है, 5 8 0 2. नाउ -0 0 को लेते हैं तो ये वाली कॉलम ये वाली रो हट जाएगी तो -1 8 और 1 और 2. नाउ लास्ट एलिमेंट +1. नाउ this column and this row will be deleted, so -1 5 1 and 0. Okay, now solve it further. 2 5s are 10, 0 8s are 0. -0 into this 0 plus 1 into -1 into 0 0. 5 1s are 5. 10 minus 0 10 into 2 20. ये हट जाएगा, 0 minus 5 -5, तो ये कितना आ जाएगा. ओके, तो आपने देखा कि पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट निकाला था वो आ रहा था -15. अब जो डिटरमिनेंट निकाला है इसको इंटरचेंज करने के बाद वो कितना आ रहा है, 15. देखो साइन चेंज हो गया, वहां -15 आ रहा है डिटरमिनेंट और यहाँ पे कितना आ रहा है, 15. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी थर्ड प्रॉपर्टी. इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, जिस रो की हम जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, ऐसी दो रो ऐसे दो कॉलम जिनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. दैट मींस इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग वन मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 1 2 3. आप देख पा रहे हो कि इस मैट्रिक्स में
यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है, सिमिलर है। हमने यही बात की कि व्हेन टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब उनके एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को लिखते हैं, तो व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 0 1 2 1 2 3। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि रो 1 और रो 3 क्या है, सेम है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। हम लोग इसको अलोंग रो एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, 1 को लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 2 3। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 2 2 3। नाउ नेगेटिव साइन विल कम, -2 2 we are taking this column, this row will be deleted, 0 2 1 3. Now plus 3, so 3 we are taking this column or this row will be deleted, 0 1 1 2. Okay, let's solve it now. 1 3 ones are 3, 2 twos are 4, -2 3 into 0 0, 2 into 1 2, plus 3 2 into 0 0, 1 into 1 1. Okay, 3 minus 4 minus 1, minus 1 into 1 minus 1, minus 2 into minus 2, plus 3 into minus 1 minus 3, minus 3 minus 1 minus 4, 2 2s are 4, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम क्या हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, उनके एलिमेंट सेम हो, तो जो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ओके ओके, सो लेट्स स्टडी द फोर्थ प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होगी उसमें भी क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। देखते हैं क्या होना है। एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स ए, तो इसमें हम सीधा डिटरमिनेंट लिखते हैं उसका। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 0 3 2 5 6 0 1 2। देखते हैं, पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारे पास, रो के अलोंग एक्सपेंड करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीटेड, 5 6 1 2 5 6 1 2। नाउ सेकंड वी आर राइटिंग, सो -0 विल बी देयर, दिस रो सॉरी दिस कॉलम एंड दिस रो, सो 2 6 0 2। नाउ plus 3, this column and this row will be deleted, remaining element 2 5 0 1 2 5 0 1। so 1 2 5s are 10, 6 1s are 6, minus 0 into something 0, plus 1 2s are 2, 0 into 5 0। okay, 10 minus 6 4, 4 into 1 4, ये तो 0 हो गया, हट गया। 2 minus 0 2, 2 3s are 6, so plus 6 हो गया। रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अभी तो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, 10 आ रहा है। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कितनी है, 10। तो हमें क्या करना है कि किसी भी रो या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी क्या होना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। अब देखते हैं कि हम किसी भी रो में या कॉलम में करते हैं। हम कॉलम में करते हैं आज। कॉलम में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो भी फर्स्ट कॉलम में। किसमें कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में। मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम की ईच एलिमेंट में क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो आप जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5, वो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 0, और ये रहेगा 0 5 1 और 3 6 2। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट निकाल के। तो 5 पहला नंबर है, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 5 का रो 5 का कॉलम हटाते हैं तो 5 6 1 2 बचता है। 5 6 1 2। दूसरा 0 है तो -0 इंटू क्या होगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो हटेगा, 10 6 0 2 10
602 प्लस में 3 लिखेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा 10501। ओके, अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो 5 सेम रहेगा, 5 2 10 और 6 1 6 तो -6, -0 समथिंग 0 प्लस 3 सेम रहेगा, 10 into 1 10, ये क्या होगा 0। सॉल्व करते हैं 5 10 - 6 4 into 4, ठीक है, ये हट जाएगा। 3 into कितना होगा 10, तो आपका 5 4 20 और 10 3 30, तो ये आपका टोटल कितना आ गया 50। आप चेक कर लो, जब आपका पहला वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी 10 आ रही थी। अब आपने इसके फर्स्ट कॉलम में क्या कर दिया था 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फर्स्ट कॉलम की ईच एलिमेंट में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कॉलम ये हो गया था। तो आप जब इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो वो भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। दैट मींस 10 का 5 टाइम्स ही आ रहा है क्योंकि हमने 5 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट is multiplied by constant k, then the value gets multiplied by k. Clear? Okay, so let's start the fifth property. If some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant are expressed as the sum of two or more determinants. समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। जैसे आपके पास एक ये सामने डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, अब इसमें देख पा रहे हो कि इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि ऐड है, लैम्डा यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है। तो उन्होंने वही बोला है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, आप देख पा रहे हो एडिशन है यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट जो होगा इसका उसको भी हम क्या दो और उससे ज्यादा टर्म्स के डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मींस इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम ये वाला पार्ट जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसके साथ में इसको हमने क्या किया, इसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हमने पहले क्या ले लिया a1, यहां से a2 ले लिया, यहां से a3 ले लिया और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख दिए। प्लस करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा 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 और हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो v1 v2 v3 और c1 c2 c3। दैट मींस हमने इसको दो डिटरमिनेंट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक हमारे पास जो रो का पहला एलिमेंट था a1 उसमें ब्रेक किया, दूसरा हमारे पास था लैम्डा उसमें हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल है डिटरमिनेंट में। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। वी आर राइटिंग वन डिटरमिनेंट a b c a plus 2x b plus 2y और c plus 2z x y z। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि इस डिटरमिनेंट में यहां पे 2x एडेड है, यहां पे 2y एडेड है, यहां पे 2z एडेड है। दैट मींस इस डिटरमिनेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पहला जो आपका डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, a b c, ये तो एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है, ये वाले एलिमेंट x y z ही रहेंगे। यहां से आप पहला एलिमेंट उठा लोगे तो क्या हो जाएगा a b और c यहां पे आ जाएगा। फिर बीच में आपका साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। दूसरा डिटरमिनेंट आपका बनेगा तो वो उसमें ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, a b c यही रहेगा, x y z सेम रहेगा और यहां पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2x 2y 2z। दैट मींस आपने वहां पे जो दो टर्म्स में वो ब्रेक था वहां पे दो टर्म्स में एडिशन दिया हुआ था, आपने डिटरमिनेंट्स में भी उसके एडिशन करके लिख दिया। तो हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं डिटरमिनेंट को और इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मींस इसका आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालोगे तो जो आएगा और इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के आप प्लस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। देयर विल बी नो चेंजेस। ओके, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट आपको निकाल के दिखाऊं, जैसे आप देख पा रहे हो एबीसी और एबीसी, हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी रो और कॉलम में रो और कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तो इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिटरमिनेंट की, 0। ऐसे में यहाँ पे भी आप देखो, अगर आप एबीसी यहाँ तो लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से स्केलर क्वांटिटी ना 2 कॉमन ले सकते हैं, किसी भी रो कॉलम में से क्या होगा 2 कॉलम ले सकते हैं, अगर कांस्टेंट है तो 2 आप कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा एबीसी और एक्स वाई जेड और आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे भी आपकी ये क्या है, आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो 2 into 0 ये आपका टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इस
डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि जब आप इसको अलॉन्ग विद रो और अगर कॉलम एक्सपेंड करोगे तो इट विल टेक टाइम। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड करके और वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, सो लेट्स कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जिससे आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है मैट्रिसेस में, उसमें क्या था कि हम किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम किसी अदर रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ऐसा ही हम कॉलम के साथ कर सकते थे कि किसी कॉलम में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, उसको किसी अदर कॉलम में क्या कर दिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा आप अगर डिटर्मिनेंट में करते हो तो ऐसा डिटर्मिनेंट में भी पॉसिबल है, और उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। तो हम लोग देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। एक आपको डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया 3/3 का। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है। अब आप इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो लाइक दिस, जो कि अब दिख रहा है आपको। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो 1 में चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि रो 1 में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं k टाइम्स ऑफ r3। क्या प्लस करते हैं, k टाइम्स ऑफ r3 प्लस करते हैं। तो अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। डेल्टा नॉट ले लिया हमने उसको, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रो 1 में चेंज कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड रो तो सेम रहने वाली है। तो पहले नोट कर लेते हैं उनको, b1 b2 b3 c1 c2 c3 को नोट कर लिया। हमारे पास ये क्या होने वाला है, r1 में हम क्या चेंज करने वाले हैं, r1 में प्लस करने वाले k टाइम्स ऑफ r3। k टाइम्स ऑफ c1 क्या होगा, kc1। किसमें प्लस करना है, a1 में। तो आपका ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, a1 प्लस kc1। ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस kc2, और ये कितना आ जाएगा, a2 प्लस kc3। आ गया इतना, हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें और इसका डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट तो हम ले लेते हैं कि डेल्टा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू एडिशन में है तो हम उसके डिटर्मिनेंट्स को भी एडिशन में लिख सकते हैं। ऐसा हमने अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहला डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, a1 b1 c1 और आपका a2 b2 c2 a3 b3 और c3। प्लस का साइन आएगा। अब जो आएगा, पहला एलिमेंट क्या है, kc1, दूसरा kc2 और तीसरा क्या है, kc3। और यहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब देखो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका डिटरमिनेंट हमने क्या लिया था, डेल्टा। तो यहाँ पे हम इसके बेस पे क्या लिख देते हैं, डेल्टा लिख देते हैं, प्लस करते हैं। अब यहाँ k कॉमन दिख रहा है आपको फर्स्ट रो में, तो k को हम बाहर ले लेते हैं। तो आपके पास डिटरमिनेंट क्या बचेगा, c1 c2 c3 और b1 b2 b3 और हो जाएगा c1 c2 c3। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो k इंटू 0 कितना होगा, 0। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट प्लस 0 इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट। दैट मीन डेल्टा की जगह आपका डेल्टा ही आ गया। तो जब आपने इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके करने के बाद भी आपने जब उसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट थी, जो कि आपकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपके डिटरमिनेंट में अप्लाई होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।